Good morning, friend. My name is Deepak Singh. Today we will discuss advance receipt on GST. First, we will discuss example when a customer receive a check of rupees 50,000 from Deepak Singh as an advance again sale of computer laptop. GST is applicable on 28%. In the same month, computer laptop was sold to Deepak Singh when GST is 28% is on credit after adjusting the advance amount 50,000. There are conditions how to apply advance receipt or not. If your company previous turnover is less than rupees 1.5 crore, you need not pay tax on advance tax. This symbol is if your previous year turnover mean here sale is less than 1.5, you need not pay any advance receipt. In case your company previous year turnover is more than 1.5 crore, you will be pay tax on advance receipt. In case if customer is buying your company is sale turnover is 1.5, then you deduct the advance tax on GST your customer. It is a right symbol on green mean here you deduct the advance tax. Here we already discussed with you when a sale invoice is raised again an advance receipt in different tax period, you need to trace the sales again the advance receipt. You will be prepare GSTR1 and GSTR3B. It show on effect on advance receipt when you raise the tax liability and same month you sell the product, then you deduct the tax liability of your tax due to you take advance receipt. Now we will performing step on teleprime. First you will enable reverse charge on your company, create debtor ledger, create sales ledger, create stock item. After that you create accounting voucher, receipt voucher. You received advance amount from the customer 50,000 and you will be liable to pay to government advance receipt on the product GST, CGST, SGST. If you sell the same state, then you pay local CGST, SGST. Create your sale invoice. After that same month, you received advance and you sell the product. There here twice time to pay the government, so you need to deduct the your tax liability from advance tax. It will show on effect on GSTR1 and GSTR3. First you will be option enable. First gateway tally alt k, then feature F11. You see these pictures show on enable the tax liability on advance receipt. Here we highlighted on yellow. Second, you need to receive the amounts against sales of goods. Amount is your gateway tally voucher F6 receipt. You did not perform simple entry. You perform advance receipt entry. Did not perform simply. You first Alt J and stat adjustment. You select here
You see the yellow color advance receipt, then enter. You put the entry same, perform the journal entry. Your bank account is debit and who is pay Deepak Singh. The bank account is debited 50,000 to Deepak Singh. After that, the advance receipt detail screen we will discuss these advance amount received on behalf which product. You tell them select the stock item computer laptop, then tell them how much amount you taken simply in see in below on particular show. Here is stock item name advance receipt is 50,000 automatically is calculated on your 28% state tax and central tax. Taxable value is 39.62. Now you create tax liability to pay the government. So you can perform at the end month and go to gateway of tally display more report report GSTR1 alt plus J state adjustment. You here nature of adjustment increase of tax liability additional detail on account of advance receipt. After that performing heading journal voucher heading is increase the tax liability additional detail on edit of advance receipt. These are the entry advance receipt on GST is under current asset 10,937.50 is your tax liability to pay the government. Output CGST 14% and here we mention 14% taxable value 39,062.50 calculated 14% 5,468.75 same as your state tax 14%. After that you create same month sale invoice. You need to perform a simply sale entry sale voucher. Here we mention the product item quantity and rate and apply the GST and we will bill wise detail. You against you receive the against reference 50,000 you can adjust them and now you will deduct your tax liability due to you generate the sale invoice and advance receipt. You do not pay due time so you deduct your tax liability. Simply go to gateway of tally display more report GSTR1 alt J same procedure type of duty GST nature of adjustment decrease your tax liability additional details sales again advance receipt and journal entry. You can see the heading use the decreased tax liability and additional details sales again sale. You increase the tax liability. You here you will reverse the entry. Here debit is output CGST 14% calculated 39,062.15 same as GST 14% taxable value 39,062.50 it calculated to 5,468.78 and total is advance receipt on GST 10,937.50. Now your assignment suppose on 1st April 23 you have received amount advance payment 50,000 behalf your computer laptop. On 2nd April it will cancel advance against sale it computer laptop. Now you will do entire entry on your Tally Prime. Thank you.
आज हम लोग सीखेंगे एडवांस रिसिप्ट किस प्रकार। आपने क्रिएट कंपनी पे जाना है। इसके बाद अपनी कंपनी का यहाँ पे मैं एडवांस रिसिप्ट सेम मंथ में हम लोग किस प्रकार करते हैं ये जानेंगे। एड्रेस पीरूमदारा बैनी बिहार, स्टेट उत्तराखंड, पिन कोड 244715, एंटर करना है। मोबाइल नंबर 76967965। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर ऑनलाइन आपने टैली एडवांस एक्सेल सीखना हो। उसके बाद आपने यहाँ जीएसटी को एक्टिवेट करना है। आप जाएंगे यहाँ पे अनेबल गुड्स फ्रॉम, आप देख रहे हैं ये ऑप्शन है आपके पास गुड्स फ्रॉम सर्विस टैक्स। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। यहाँ पे स्टेट आपकी उत्तराखंड है, बैक जाके उत्तराखंड। उसके बाद आपने अपना क्या डालना है यहाँ पे आपने अपना जीएसटी नंबर इनपुट करना है 05BWGC S2129R1ZE। इसके बाद आपने एडवांस रिसिप्ट ऑप्शन को सीखने के लिए हमें एक ऑप्शन एक्टिवेट करना होता है जिसको बोलते हैं अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। ये ऑप्शन आपका यस होगा। यस क्लिक करोगे, कंट्रोल ए करके हमें सेव कर लेना है। उसके बाद दोबारा कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अब हमने यहाँ पे कुछ लेजर बनाने हैं। जो सबसे पहले क्रिएट पे जाओगे, लेजर एसबीआई बैंक अकाउंट बना रहे हैं। किसके अंदर आएगा? स्टेट बैंक ऑप्शन के अंदर आएगा बैंक अकाउंट। कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे दूसरा लेजर जिसको हम बोलते हैं सेल्स लेजर, SALE सेल्स लोकल। हम लोग लोकल सेल्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अंडर किसके अंदर आएगा? सेल्स अकाउंट के अंदर। उसके बाद आपने जीएसटी ऑप्शन आप देख रहे हो यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल। इस ऑप्शन को क्या करना है? हमें यस करना है। जैसे ही आप यस करोगे तो इसके अंदर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपने स्किप कर देना डिस्क्रिप्शन कोड, HSN कोड। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे आपने क्या करना है? सिलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन कहाँ से लेनी है? ये है आपके पास सेल्स टैक्स। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेल्स टैक्स करोगे, एरो की मदद से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये आपका इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, टैक्सेबल का ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। 28% टैक्स लगेगा हमारे प्रोडक्ट पे। एंटर करोगे, ये हमारा क्या है? गुड्स है। कंट्रोल
गुड्स आना था, यहाँ सर्विस सिलेक्ट हो गया। गुड्स कंट्रोल ए करोगे, ये आपका ये वाउचर सेव हो गया। उसके बाद हम लोग एक दीपक सिंह सन्ड्री डेब्टर अकाउंट बनाएंगे। यस, रेगुलर है, इसका हम जीएसटी नंबर देंगे 05 VF आपने इसका जैसे ही जीएसटी नंबर एंटर किया, ये आपका सेव हो गया। इसके बाद हमने लेजर बनाना है किसका, CGST 14% किसके अंदर, एक ग्रुप क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे एडवांस टैक्स नाम से। किसके अंदर आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। और आपने इस ऑप्शन को भी यस करना है, ग्रुप बिहेवियर लाइक सब लेजर। कंट्रोल ए करोगे, आपका ये सेव हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी सेंट्रल टैक्स 14% नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए करके आप छोड़ दोगे। फिर हम लोग यहाँ पे आउटपुट एस जीएसटी 14% करेंगे। एडवांस टैक्स के अंदर रहेगा जीएसटी, और किसके अंदर सिलेक्ट करोगे, इंटीग्रेटेड टैक्स की स्टेट टैक्स गुड 14% नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल ए। अब हमसे एक मिस्टेक हुई थी, उसको रिएक्टिफाई करेंगे ऑल्टर पे। पता लगा बच्चों कौन सा, CGST हमसे जो मिस्टेक हुई थी, CGST SGST। इसके आगे हमने क्या करना है, आउटपुट कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। अब हमने एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करनी है। वाउचर पे जाओगे, यहाँ पे रिसिप्ट, क्योंकि हम पार्टी से क्या 50,000 एडवांस ले रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एडवांस रिसिप्ट करने के लिए किससे ले रहे हैं, दीपक सिंह से। कितना, 50,000 एडवांस रिसिप्ट ऑन अकाउंट करोगे एडवांस। दीपक सिंह 01 SBI बैंक। देखो अगर ये इस तरीके की एंट्री करोगे तो ये तो सिंपल एंट्री हुई। हमें क्या करना है, इसको जीएसटी में लेना है कि वो किस गुड्स के अगेन हम एडवांस रिसिप्ट ले रहे हैं। ये तो तुम्हारी सिंपल एंट्री हो जाएगी। कंट्रोल ए करूंगा तो आप देखोगे ये आपको सिंपल बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट में डिस्प्ले होगी। बैंक अकाउंट में 50,000 यहाँ पे, अब सेल्स अभी हुई नहीं है तो इसीलिए 50,000 यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने ये इस एंट्री को क्या करना है, रिएक्टिफाई करना है। पेज अप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्ट जे जैसे ही करोगे तो हमारे पास एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं एडवांस रिसिप्ट। इस ऑप्शन का यूज करना है कहाँ पे, नेचर रिसिप्ट के अंदर। जैसे ही इसको एंटर करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास ये टॉप पे क्या लिखा आ रहा है,
यूज फॉर एडवांस रिसिप्ट। अब सबसे पहले आपने डेट करेक्शन करने के बाद उसके बाद आपने एंटर करोगे यहाँ पे दीपक सिंह। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी, आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांस रिसिप्ट डिटेल, किस गुड्स के अगेंस्ट हमने रिसीव करनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है क्योंकि हमने पहले कोई बनाया नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिएट करना है स्टॉक आइटम। एंटर करोगे, मैं यहाँ पे कंप्यूटर का बना रहा हूँ, कंप्यूटर HP लैपटॉप। एंटर करोगे। अब यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं, HP ब्रांड का है ये। एंटर करोगे, यहाँ से यस करोगे, कंट्रोल A कर लोगे। इसके बाद हम लोग यूनिट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करोगे। यहाँ पे यूनिट में हम लोग पीस डाल रहे हैं, PCS, PIECES, PC सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल A करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ऑल्टरनेटिव यूनिट हम कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाओगे आपके GST डिटेल। GST डिटेल में आपने ये भरना कंपलसरी है, बिना इसके आप नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यस Y प्रेस करोगे तो ये अब आप देख रहे हैं हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, कंप्यूटर HP लैपटॉप। इसको हमने फिल करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, HP लैपटॉप। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं HSN कोड, ये हमारा कोई ओरिजिनल नहीं है इनवॉइस, इसीलिए हम लोग एक डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे एंटर करना है। 8 डिजिट का टैक्सेबल आपका रहेगा। उसके बाद कोई रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है, हमारा टोटल लगेगा 28%। ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा 14 पे। इसके बाद आपने टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करना है, कंट्रोल A करना है। आपका ये कंप्यूटर आपने कितने रिसीव किए हुए हैं वो अमाउंट आपको मेंशन करनी है, 50,000। एंटर करोगे तो आपका ये देखोगे ये टैक्स कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अगर आप यहाँ पे ऑल्ट A भी करोगे, यहाँ कंट्रोल A करके एडवांस, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। नरेशन लिखना है एडवांस कंट्रोल A करोगे, ये आपका इनवॉइस सेव हो गया। अब हम चलते हैं अपने बैलेंस शीट पे, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो आपको देखोगे कि अभी आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस में कुछ नहीं है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओगे, GST रिपोर्ट पे जाओगे, GSTR1 हमने 1 अप्रैल की ली हुई थी, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, एडवांस रिसिप्ट अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई, ये आपको दिख रहा है। अब जब आप इस लायबिलिटी को बुक करोगे, इंक्रीज करोगे अपनी लायबिलिटी, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ है, टैक्स लायबिलिटी एडवांस 11A1A2 के अंदर आपको डिस्प्ले होगी। तो आपको अपनी लायबिलिटी बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई पे आना है। इस पे उत्तराखंड की है हमारी। अब आप देख सकते हैं, आप ये जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, जब आप इंक्रीज कर लोगे अपनी लायबिलिटीज तो क्या होगा, ये ऑप्शन आपको कहां पे मेंशन करके दिखेगा, यहाँ पे
और ये रेड वाला जो सिलेक्ट किया हुआ है ये क्या हो जाएगा, आपका ब्लैंक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक स्निपर टूल यूज करना है। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। मैंने इसकी स्क्रीनशॉट रख ली है ताकि ये अमाउंट आपको हेल्प होगी। अब आपने वापस टैली पे आना है। टैली पे आने के बाद आपने एक ऑप्शन देखोगे यहाँ पे स्टैट एडजस्टमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है ऑल्ट जे करके। अब हमने इंक्रीज करनी है अपनी टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट किसके, ऑन अकाउंट एडवांस रिसिप्ट। जैसे ही आप एडवांस रिसिप्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको ये एडजस्टमेंट, आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 अप्रैल लेंगे, 30 नहीं लेंगे क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे F2 प्रेस, यहाँ पे ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करोगे, यहाँ पे F2 प्रेस करोगे, डेट सिलेक्ट करनी है हमें। यहाँ पे 2/4 सेम मंथ में एंटर किया हमने। इसके बाद आपने एक लेजर बनाना है, ऑल्ट सी करना है, एडवांस रिसिप्ट ऑन जीएसटी। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और लेजर क्रिएट करना है, ऑल्ट सी, एडवांस टैक्स रिसिप्ट। क्योंकि ये आपकी एसेट होती है, किसके अंदर रखोगे, करंट एसेट के अंदर, और बिहेव करे सब लेजर की तरह। कंट्रोल ए करोगे, आपका ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए कर लेना है आपने। अब यहाँ पे आपने मेंशन करनी है कि हमने टोटल वैल्यू क्या थी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, 39,062.75। एक बार अगेन देख लोगे, 39,062.50 है, हमने 75 लिखा हुआ है, इसको 50 एंटर करोगे। अब यहाँ पे आपने आउटपुट CGST 14% एंटर करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, यही वैल्यू लिखनी है जो हमने अभी एंटर की, आपने यहाँ पे 13,000 नहीं, टोटल टैक्स अमाउंट डालनी है 10,937.50 एंटर करोगे। यहाँ पे आपने डालनी है 39,062.50 एंटर करोगे। अब ये पूछ रहा है आपकी आउटपुट CGST कितनी है, मैंने बोला 5,468.75 एंटर करोगे। सेम अमाउंट आपकी SGST पे भी होगी। इसके बाद आपने यस करना है, लेजर नेम दीपक सिंह, पार्टी नेम नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके सेव कर लोगे। आपने बुक टैक्स लायबिलिटी इन अप्रैल मंथ, कंट्रोल ए करोगे, ये आपका सेव हो गया। अब आप देख सकते हो कि हमने ये जो एंट्री पुट की
तो यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी बुक्ड हो गई है। अब हमने क्या करना है, बैक जाना है, बैलेंस शीट पे चेक करना, पहले जीएसटी ईयर 1 को ही देख लो। आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला था जब आप ये लायबिलिटी को बुक करोगे तो आपको इस प्रकार आपका टैक्स दिखेगा, दिख रहा है ना आपको टैक्स लायबिलिटी, और नीचे एडवांस टैक्स भी दिख रहा है 50,000। अभी हमने यूटिलाइज नहीं की है। अब क्या करेंगे, हम जीएसटीआर 3B भी चेक करेंगे। जीएसटीआर 3B में भी आप देखोगे आउटवर्ड सप्लाई के अंदर एंटर मारोगे, आउटवर्ड सप्लाई टैक्स, यहाँ पे भी आपको मेंशन डिस्प्ले हो रहा है एडवांस टैक्स। अब हम लोग क्या है, बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं एक बार, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बैलेंस शीट पे जाओगे, ऑल्ट के साथ F1 करोगे तो आपको ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में एडवांस टैक्स दिख रहा है आपका, CGST SGST, आप ये देख सकते हैं, ये दोनों अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रही है। अब सपोज कीजिए आपने क्या है, इसी मंथ में क्या है, आपने एक सेल बिल क्रिएट कर दिया। वाउचर में चलेंगे हम, इसी मंथ में 2 तारीख को सेल बिल पे जाएंगे, दीपक सिंह सेम पार्टी रहेगी हमारी, कंट्रोल A करके। अब यहाँ पे लोकल सेल रहेगी हमारी। अब सेल हम 2 तारीख को कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर HP लैपटॉप सेल कर रहे हैं एक क्वांटिटी, जिसकी प्राइस है 60,000। अभी ये अज्यूम करके चलते हैं हम कि 50,000, तो मैं इसके बाद दिखाऊंगा क्या इफेक्ट होता है। इस तरह आप बिल काटते होगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। यहाँ पे हम लोग ई वे बिल नहीं बना रहे हैं, अभी लर्निंग पर्पज से सीख रहे हैं, तो हम लोगों ने नो रखना है। यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट, क्योंकि इस पर्सन ने एडवांस दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडवांस रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। आपने एडवांस रेफरेंस सिलेक्ट किया, ये दीपक सिंह उस समय हमने रेफरेंस दिया था, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे नरेशन अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, आप टाइप कर लेना सेल्स, ठीक है, वाउचर नंबर डाल के। यहाँ पे हमने जैसे ही सेल की, अब हम चलते हैं हमारा बैलेंस शीट क्या बोलता है। ऑल्ट F1 प्रेस करोगे, आप देखोगे कि आपका टैक्स जो है वो डबल हो गया, 10,937.50, यानी कि हमें 21,875 क्या है डबल अमाउंट देना। कितना था हमें, 10,937.50। तो अब हम लोग यहाँ डिस्प्ले पे जाओगे, मोर रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट में भी चेक कर लेते हैं एक बार। जीएसटीआर 1 पे जाओगे, जीएसटीआर 1 पे जाओगे, आपका देखो यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट सेल्स करने से हमारा क्या हुआ, अमाउंट एडजस्टमेंट अगेंस्ट सेम अगेंस्ट सप्लाई, ये आपकी क्या होगी, नील हो गई। उसके बाद इफेक्ट देखोगे आपका यहाँ पे नेगेटिव एडवांस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अब 3B में देखो हमने कितना टैक्स देना है, यहाँ पे आओगे आप, क्या आप लायबल हो एक ही चीज को 2 बार देने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ये देख रहे हो आप कि हमारा ये 2 बार, एक बार सेल्स के अगेंस्ट है, एक बार हमने लायबिलिटी बुक की थी इस मंथ के लिए, लेकिन हमने क्या है इसी मंथ सेल कर दी है, तो ये टैक्स कितना हो गया, ड्यूल हो गया हमारा कि 2 बार जा रहा है, जबकि जाना चाहिए था इसको CGST 5,468.75 और स्टेट टैक्स जो है 5,468। ये एडवांस टैक्स अब हमने क्या करना है,
अपनी लायबिलिटी को क्या करना है, रिड्यूस करना है। आप आ जाओगे GSTR 1 पे, ये हर महीने के एंड में डालेंगे। तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। तो आपने क्या करना है, ऑल्ट J प्रेस करना है, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी किसके अगेन, सेल्स अगेंस्ट के। अब आपने जब हमने इंक्रीज की थी टैक्स लायबिलिटी तो एडवांस रिसिप्ट ऑन GST क्या किया था, डेबिट किया था। तो हमने उस एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है। यहाँ पे आपने अमाउंट डालनी है 39,0 कितनी थी, टैक्सेबल वैल्यू 62.50 थी, एंटर करोगे। अब आपका अमाउंट कितना है, सेम अमाउंट आपका SGST का भी होगा, ये आपका डेबिट में आएगा 5468.75। अब क्रेडिट किसको करेंगे, एडवांस रिसिप्ट, इतनी अमाउंट से क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। यहाँ पे GST आपने रिसिप्ट नंबर आपके पास होगा 001 जो आपकी मैनुअल होती है, किस डेट को थी ये, 1/4। उसके बाद लेजर नेम डालना है, कंट्रोल A कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एडवांस अगेंस्ट सेल्स, कंट्रोल A करोगे तो आप देखोगे कि आपका इफेक्ट क्या पड़ा GSTR 1 में, सेल्स की रिपोर्ट में। यह आपकी अमाउंट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। यहाँ पे एंट्री में थोड़ी गड़बड़ है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट पे जाओगे, डे बुक पे, ये आपकी इंक्रीज की थी हमने टैक्स लायबिलिटी 546875। ओके फिर से चलते हैं हम लोग रिपोर्ट पे, GSTR 1 यहाँ पे 1 रुपीज का फर्क आ रहा है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ₹1 का फर्क, ओके। हमने यहाँ पे देख रहे हो 62 63, आप देख सकते हो डिफरेंसेस, आपको फाइंड आउट करना आने चाहिए। यहाँ 63 डाला हुआ है, यहाँ 62 है। आपने क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, कहाँ पे, यहाँ पे एंड पे जाना है 62.50, सेम नीचे भी यही करना है, एंड पे जाना है 62, कंट्रोल A करोगे, ये आपका सेव हो गया। अब आप देख सकते हो कि आपका कोई लायबिलिटी नहीं है। अब
GSTR3 भी देखोगे आपकी 10,937। आप देख रहे हो एक और एंट्री यहाँ पे पड़ी है जो हमें क्या कर रही है, पहले हमने एडवांस रिसीव की थी, उसके बाद हमने टैक्स, अब ये एडवांस रिसीट इसी मंथ में हमने क्या किया, रिसीव किया था, तो इसीलिए क्या किया हुआ, इस अमाउंट को हमने क्या डिडक्ट कर लिया। ये था हमारा एडवांस। अब हम लोग चेक करते हैं हमारी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है। बैलेंस शीट पे जाओगे, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो आपका ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर एडवांस टैक्स, यहाँ पे भी आपका देख रहे हो, उस समय मैंने आपको दिखाया था ये अमाउंट 10,937 CGST दिखती थी और 10,937.50। तो हम एक ही मंथ में ड्यूल टैक्स नहीं देते, तो इसीलिए हम लोग ये एडवांस रिसिप्ट सेम मंथ का केस कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट इट। थैंक यू।